गुरुत्तम difference is equals to work done upon, क्या था फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन quantity of charge moved. Quantity of charge moved. So we can write down just Q here, right? So in the short we can say V is equals to W upon Q, correct? So question में क्या दिया हुआ है? What is given in the question? How much energy is given to each coulomb of charge? Each coulomb of charge means what? What does it mean? Each coulomb of charge means the value of the charge is 1 coulomb, right? And they have told coulomb of charge passing through 6-volt battery. So what is the value of V they have given? The value of V they have given me as 6V. So we have to find the energy. So energy means we have to find what? We have to find the work done, right? So अगर आप यहाँ देखोगे फॉर्मूला तो हम इसको क्रॉस करा देंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं W is equals to V times Q, right? So it will become what? It will become 6 times 1, that gives me 6. And what is the unit for work done or energy? कोई जानता है? सोनल, अमीशी, आदित्य? Joule होगा सर. Joule. Okay. So unit of the work done is 6 joule. So please make a note of it fast. All of you guys, please make a note of it. So they can ask this type of questions in numerical part. Fine. Shall we move? Yes sir. Okay, सब लोगों ने नोट कर लिया है? Yes sir. Okay, so we are moving now. So in today's topic, we have to study about, just give me a second. This part is, yeah. Okay, we have to study about electric current. Electric current. Okay, so first of all, आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे what is electric current. So नोट डाउन कीजिए मेरे साथ. The rate of change of charges per unit time. Rate of change of charges per unit time is called current. नोट कर लीजिए स्टेटमेंट को. नोट कर लिया सभी ने? Yes sir. Okay, fine. So we have seen here the rate of change of charge is called electric current. Okay, so let's see. So current means, यहां पर मैं अगर आप इसको दिखाना चाहूंगा, just a second. तो यहां पे आप लोग देखिए ये है चार्ज. So हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज मीन्स Q, right? और रेट ऑफ चेंज मीन्स क्या? मीन्स कि हाउ द टाइम. यस, टेल मी. कोई कुछ कह रहा है? ओके, फाइन. सो इफ आई विल डिवाइड इट बाय टाइम, सो इट विल बिकम व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. So that is coming to the electric current. So we can say current we can define by the I. So I is equals to Q over T. Please make a note. This is the formula. This is the formula. आप सभी लोगों ने ये डिफिनेशन लिखा है, राइट? Yes sir. Yes sir. ओके, मैं एक डिफिनेशन और बताने जा रहा हूं
जरा उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे. गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट अपलोडिंग द डेफिनेशन हियर. सो नाउ आप लोग एक काम कीजिए, यहां से सभी लोग स्लोली स्लोली जो है, ये देखिए इन्होंने लिखा है द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर is the amount of electric charge passing through the given point of the conductor in 1 second. So they have taken in the 1 second form, right? So हम इसको definition अलग से भी लिख सकते हैं कि मैं एक चीज बता देता हूं कि करंट क्या होता है basically. Just give me a second, I will take this page. Give me a moment. Suppose that कि okay, सपोज दैट ये हमारा वायर है. क्या है हमारा? वायर है, राइट? इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक वायर हो गया हमारे पास. इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लोली स्लोली पास करेंगे. क्या करेंगे इसके अंदर से? स्लोली स्लोली हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर से पास करेगा, राइट? इस डायरेक्शन में. तो हमें ये देखना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमें क्या देखना है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस. और सपोज इट हम यहां पे काउंटर, जैसे हम लोग, मैं एक एग्जांपल लेता हूं. अगर हमें कुछ काउंट करना है कि कोई बच्चे जो हैं वो क्लास के अंदर कैसे गए, तो हम क्या करते हैं? हम गेट पे खड़े हो जाते हैं और जितने बच्चे अंदर गए हम उनको काउंट करते हैं. ये तरीका होता है, राइट? वैसे ही हम एक काम करेंगे, हम इस पॉइंट पर लोकेट करेंगे कि इस पॉइंट को कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पास किया है. तो हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, एग्जांपल लेते हैं कि 30 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा एक सेकंड में, कितने सेकंड्स में? एक सेकंड में 30 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा पास कर जा रहा है यहां से. सो वी विल काउंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस in 1 second. So this data will provide us about the total charges. That total charges, 30 electrons is the total charges, and the time we are considering, that is the 1 second. So like this we can say the current is how much? The current is 30. What is 30? 30 ampere. जो नहीं जानते हैं नोट डाउन कर लें. Ampere is what? SI unit of current is ampere. Please make a note of it. Noted? Yes, sir. तो ये जो हमारा है, ये हमारा यहाँ पे एम्पियर जो है वो हमारा यूनिट है. किसका है यूनिट? ओहो, या एम्पियर जो है हमारा वो यूनिट है. किसका है यूनिट? करंट का. इज इट क्लियर? Amishi, is this clear till here? Hello. Yes, sir. Yes. सोनल आपको क्लियर है? Yes, sir. आदित्य, अमीशी, नीतीश, आप लोगों को क्लियर है? अमीशी, हेलो अमीशी, कैन यू हियर मी? नीतीश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, ओके, sir. ओके, फाइन, ओके. लेट्स सी फर्दर. तो हमने यहां तक पढ़ा है कि व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, राइट? अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज 1 एम्पियर. What is 1 ampere? So I'm just going to upload it here. Just give me a second. Just give me a second. I will upload it.
आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. When 1 coulomb of charge flows through any cross section of the conductor in 1 second, the electric current flows through it said to be 1 ampere. Please make a note, I will explain this. Oh, sorry. Please make a note of it. Done? एक सेकंड सर. अमिशी लिख लिया आपने? हो गया सर. ओके, नीतीश, आदित्य, आप लोगों ने लिखा? ओके, फाइन. सो लेट्स प्रोसीड. मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. आप लोगों ने देखा होगा जो वायर्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, सर्कुलर रहता है, मतलब कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो यहाँ पे क्या है, सर्कुलर रहता है, राइट? जो क्रॉस सेक्शन आपने देखा होगा वो सर्कुलर. सो वायर जो सर्कुलर होता है, तो क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, राइट? आप लोगों को मैंने बताया था 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स. तो कहने का मतलब ये है कि जब 1 कूलम चार्ज जो है वो इस वायर से क्रॉस करेगा कितने टाइम में? 1 सेकेंड में. तो हमको क्या मिलेगा? तो हमें करंट मिलेगा. क्या मिलेगा? करंट. एंड दैट करंट, हाउ मच वी विल गेट इट? वी विल गेट इट एज 1 एम्पियर. इज दैट क्लियर? सो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इतना इलेक्ट्रॉन पास ऑन होगा तो 1 कूलम चार्ज हो जाएगा. 1 कूलम चार्ज में 1 सेकेंड में अगर इस वायर से पास करता है तो हमें क्या मिलेगा? 1 एम्पियर मिलेगा, राइट? सो द सेम वे दे हैव टोल्ड हियर दैट 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट. आप ये वाला बॉक्स नोट डाउन करें. 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. फिर नीचे वाला बॉक्स आप नोट डाउन करेंगे 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड. सो 1 एम्पियर का क्या यूनिट हो गया? 1 एम्पियर का यूनिट हो गया 1 कूलम पर सेकेंड. ओके, सभी को क्लियर है या कोई डाउट है? बताइए. अमिशी, सोनल, नीतीश, आदित्य, यस. क्लियर है? ओके. नोट कर लीजिए फास्ट. Shall we proceed? बढ़े आगे? यस सर. Okay, fine. Okay. Give me a second. नेक्स्ट जो है, कल आपको मैंने बताया था. अच्छा, एक चीज रह गया, जस्ट गिव मी सेकंड, जो चीज बतानी है यहाँ इंपॉर्टेंट है. आप सभी लोग नोट डाउन करें. 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर मतलब, जैसे मैं एक चीज बता दूं, आपने मीटर पढ़ा है, राइट? तो वहां पे सेंटीमीटर आता है, वैसे ही एम्पियर में मिली एम्पियर बोलते हैं. ओके, मिली एम्पियर. और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, स्मॉल एम कैपिटल ए, राइट?
So this is known as milliampere. Milliampere means 1000th part of the ampere, मतलब कि 1000वां पार्ट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1000 एम्पियर, और आप इसको सीधे ए भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है. ओके, so please make a note of it fast. नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर. ओके, हमने कल बात किया था एम मीटर के बारे में, राइट? व्हाट इज एम मीटर बेसिकली? नीतीश, आप बता सकते हैं एम मीटर क्या होता है? मेजर करता है करंट. करंट मेजर करता है. ओके, ओके फाइन. अमीशी, सर्किट में एम मीटर कहां लगाते हैं? पैरेलल में और सीरीज में? सीरीज में. ओके फाइन, ठीक है. ओके फाइन. सो जस्ट गिविंग यू गाइज, गिव मी अ मोमेंट. सो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग प्लीज नोट डाउन कर लें कि जो हम ये एम मीटर होता है वो हम सीरीज में लगाते हैं. सो मैं लिख भी दूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड. So all of you guys can see here, this is the ammeter, okay? An ammeter generally we utilize for what? We utilized for measuring the current. So please make a note of it. अगर जो नहीं जान रहे हैं वो दोबारा से नोट कर लें. So current is measured by an instrument called ammeter, right? और ये सेकंड वाला लाइन भी नोट कर लें. The ammeter is always connected in series with the circuit in which the current to be measured, right? Done guys? यस. Okay, एक important point और भी है, नोट डाउन कर लें. An ammeter should have very low resistance. Should have very low resistance. ये जो resistance word है मैं इस पे बात करूंगा थोड़ी देर के बाद. This is very important thing, बहुत बड़ा टॉपिक है. I will come to that topic one by one. आप सभी लोगों ने नोट कर लिया ये वाला? यस सर. ओके, नीतीश आपने? आदित्य, अमीशी आपने नोट कर लिया? यस सर. ओके, आदित्य आपने नोट किया? आदित्य? यस सर. ओके फाइन. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स, जो कि हम प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी. ओके, अमीशी जो प्रॉब्लम्स अभी हम बताने जा रहे हैं ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, ओके. दे कैन आस्क द न्यूमेरिकल्स लाइक दिस. और जो भी आपका पेपर होगा आप उसको एक काम करना, पेपर मतलब जो भी टेस्ट या जो भी रहेगा उसकी फोटो रखना, ओके सर. ताकि हम बाद में उस पर डिस्कस कर सकें. हाँ Fine? जी. Okay, Yes. all of you guys please read the problem. So the problem says an electric bulb draws a current of 0.25 ampere for how many minutes? 20 minutes, right? Calculate the electric charge flows through the circuit. कौन बनाएगा इसको? फास्ट. मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है. ओके, आयुष, सोनल बताइए कितना आंसर है? बना रहे सर. हाँ तो बनाइए. आप लोगों के जूम में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, ट्राई किया कीजिएगा. जैसे रेज हैंड का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन है, आप चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं. सर हो गया. कितना आंसर आया? 300 कूलम. हाँ 300 सर. ओके, सोनल आपका कितना आंसर आया? मेरा 5 आ रहा है. 5 कैसे आ जाएगा जी? आपने शायद करंट का जो है फॉर्मूला ढंग से नहीं पढ़ा लगता है. अमीशी, व्हाट्स योर आंसर?
अमीशी? I'm not able to solve it. मुझे नहीं पता चल रहा like ओके, नो Formula. प्रॉब्लम. आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे प्रॉब्लम. सर यहाँ पे इसको हम मिनट में ही छोड़ दिए थे, कन्वर्ट नहीं किए थे. वेट, आई विल डू दैट. आई विल डू दैट. अमीशी, नो प्रॉब्लम. अगर कोई दिक्कत हो तो आप सीधा बोला कीजिए कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया. ठीक है. ओके, लेट्स Yes. सी हाउ वी कैन डू दिस. सो यहाँ पर अमीशी क्वेश्चन क्या पूछा है? आप पढ़ के बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है. an electric bulb draws a current of 0.25 A for 20 minutes. राइट. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. ओके, परफेक्ट. तो आपको क्या मालूम चला कि यहाँ पर जो है कितना करंट की वैल्यू क्या दिया हुआ है? अमीश अभी म्यूट मत कीजिए, अनम्यूट कीजिए. करंट की वैल्यू Yes, क्या sir. दिया? करंट की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 0.25. 0.25 एम्पियर. ऑलवेज यूज द यूनिट्स ऑल्सो. ओके. Okay, sir. ओके, Yes, sir. टाइम क्या दे रखा है इन्होंने? व्हाट इज द टाइम? 20. Time is equals to, they have given me as 20 minutes. कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ओके. No, sir. क्या निकालना क्या है हमें? चार्ज. क्या निकालना है हमें? Charge. चार्ज. Charge. तो आपको मैंने एक फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ाया है, I is equals to Q upon T. पढ़ा है फॉर्मूला? Yes, sir. इसमें Yes, I sir. मालूम है, इसमें T मालूम है. क्या हम Q निकाल सकते हैं? Yes, sir. क्या करेंगे? Q के लिए क्या कर देंगे हम? Q is equals to, देखिए मैं ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं पढ़ाता. एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं देता हूं. एक फॉर्मूला देता हूं, उससे मल्टीपल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं. राइट. तो अब देखिए Yes, sir. मैंने यहाँ पे I is equals to Q upon T पढ़ाया था, मतलब करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. राइट. तो Yes, हमको करंट मालूम है, टाइम मालूम है, तो चार्ज निकाल सकते हैं. कैसे? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये कितना हो जाएगा? I इंटू टी. तो Q का फॉर्मूला हो गया जी I इंटू टी. राइट. Yes, sir. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें? मैंने जब बताया था कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ये पढ़ाया ना अभी. टाइम Yes, sir. किस में है? टाइम किस में है हमारा? Minutes. कैन वी कन्वर्ट इन द मिनट सेकेंड्स? Yes, sir. हाउ वी कैन कन्वर्ट इन द सेकेंड्स? So we'll मल्टीप्लाई divide बाय it by multiply by 60. मल्टीप्लाई बाय 60. याद रखिए 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है. राइट. Yes. So Yes, we will sir. multiply. So it will become how much? It will become 1200 seconds. Correct. So Yes, now sir. we got it the time. So I will write down again here. Q is equals to I into T. So I is coming 0.25 ampere. And Yes, sir. here is coming 1200 second. So can you multiply it fast? Yes, sir. तो मल्टीप्लीकेशन का भी तरीका मैं बता देता हूं. यहां से हम इसको उड़ा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा. Yes, sir. 100. तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे. राइट. Yes, sir. तो कैंसिल कर देंगे. उसके बाद देखिए क्या बचेगा हमारे पास. उसके बाद हमारे पास बचेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू सॉरी 25 टाइम्स 12. Q is equals to 25 times 12. So 25 times 12 कर दिया तो ये कितना हो गया? 300 कूलम. जिन लोगों को मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत है तो थोड़ा सा आके यहाँ देखिए, सीख लीजिए. मैं बताने जा रहा हूं कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं. ठीक है. देखिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग. अभी मेरे पास प्रॉब्लम आई कि 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना था. राइट. तो हम इसको लिख सकते हैं 25 टाइम्स 12 को लिख सकते हैं हम 10 प्लस 2. 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 250. और 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 50. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 300. सभी को समझ में आया फास्ट कैलकुलेशन के लिए? यस सर. अगर और इसमें करना है, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि कुछ ऐसे होता. राइट.
तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करते, अगर मैं तो इसको माइंड में ही कर सकता हूं, लेकिन आप लोग के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 100, 20 एंड 6, राइट। तो सिंपल सी बात, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2500, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 500, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150, नहीं 25 चौको 100, हाँ ठीक है 150 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 3000 और ये हो गया 150, सो 3150। डन, क्लियर है मल्टीप्लीकेशन का? यस सर। ओके, तो इस तरीके से आप यूज, देखिए इसको मैंने लिखा जरूर है सॉरी, लेकिन आप सभी लोग इसको माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा, ये तरीका अपनाकर, ठीक है। ओके, ये वाला आप सभी लोगों ने नोट कर लिया गाइज, ऑल ऑफ यू नोटेड? Yes, sir. Okay, so let's move. Just give me a second. एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं। I'm just taking the problem here, guys. 1 minute. Okay, I will take all these problems. Okay. Okay, I'm giving the numbers. Let's see who will do first. Number 1, number 2, number 3. 3 problems I have taken at one time. So who will tell the answer for the first one? Which unit could be used to measure current? Coulomb. No, sir. Current. Ampere, ampere. Yes, sir. Ampere. Amishi, is this correct answer? Yes, sir. Okay. Second problem. If the current through a flood lamp is 5 ampere, what charges passes in 10 seconds? 50 coulomb, sir. Okay, all of you agree with 50? Yes, sir. Aditya, Amishi, 50 is correct? Yes, sir. Okay, so 50 is the correct one. Amishi, मालूम चला कैसे बनाएंगे ये वाला? So same formula लगाएंगे. Same formula. Yes, formula is the same. Okay, now third question. If the amount of electric charge passing through a conductor means, देखिए conductor का मतलब wire. आपको सिंपल अपने दिमाग में रखना, कंडक्टर मींस यहाँ पे वायर लेना है, ठीक है। बस वाला कंडक्टर कोई नहीं समझेगा, फाइन। ओके, सो यहाँ पे पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 minutes is 3 coulomb. Find the current. So please. 0.5, sir. 0.5 ampere. Okay, fine. आदित्य, आदित्य आपका आंसर क्या है? Amishi, what's your answer? मैं मैच नहीं कर रहा. मैच नहीं कर रहा। ओके, एक बार और ट्राई कीजिए। मैच क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं किया होगा। Am I right? किया है तो टाइम जो हो गया वो 10 मिनट्स था, तो 10 मिनट्स को हम लिख देंगे 10 into 60, so it will give me how much? 600 seconds. And what charge we have? We have the charge. We have the 300 coulomb. So Q is equals to 300 coulomb. So current is equals to how much? Q over T. So it will become how much? 300 upon 600. So it will become 3 by 6. That is giving me 1 by 2. That gives me 0.5 ampere. आपका कहाँ मैच नहीं किया? छोटा सा सवाल था। डिवीजन में गलती कर दी. Okay, no problem. Okay, आदित्य कहाँ चले गए? आदित्य, Yes, sir. आप कहाँ गायब हो जाते हैं? अनम्यूट करके आप बोला कीजिए, ठीक है? ओके फाइन, चलिए ये वो सवाल हो गया ये वाला।
हाँ आदित्य, Yes, sir. ये सवाल हो गया पूरा, Yes, sir. आंसर यही आया है? Yes, sir. ओके ठीक है, ओके परफेक्ट। Okay guys, so giving you one more problem, just give me a second. Okay, this is good, this is good. Okay, ये प्रॉब्लम बड़ा मजेदार है, लेट्स सी दैट। गिविंग यू गाइस, ये सिंगल प्रॉब्लम है, प्लीज रीड, एंड जो भी सॉल्व कर लिया होगा वो हैंड रेज करेगा। प्लीज रीड इट फास्ट। मैं रीड कर देता हूं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 volts मेन सप्लाई, a current of 8 ampere flows, right? They're asking how much charge flows around the circuit each second, and they're asking how much energy is transferred to the heater each second. किसी का आंसर? Okay, we will do the answer for the first one. A part. A part का किसी का आंसर निकला क्या? सोनल, अमीशी, नीतीश, आदित्य? नो सर। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? कोई रीड करेगा लाउड? An electric heater is connected to the 230 volt main supply. A current. Wait, 230 वोल्ट मेन सप्लाई मींस क्या दे रखा है? वोल्टेज दिया हुआ है हमें? Yes sir. ओके, वोल्टेज दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? A current of 8 ampere flows तो through करंट जो है 8 एम्पियर दे दिया है उसने, राइट? Yes sir. ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ए में? आई एम टॉकिंग फॉर द ए पार्ट। How much charge flows around the circuit each second? ईच सेकेंड टाइम दिया हुआ है क्या? No sir. अरे Yes sir. टाइम इज 1 सेकेंड, ईच सेकेंड 1 मतलब टाइम इज One. 1 second. So for the first part, they are asking the charge Q. So Q is nothing but I into T, right? So Yes. Q is I into T. So I is 8 ampere and time is 1 second. They have already given the question. So it will become how much? It will become 8. So 8 coulomb is the first answer. Do you clear with this, all of you guys? Yes sir. Yes, sir. समझ में आया? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ट्विस्ट था थोड़ा सा, उस ट्विस्ट को पहले पकड़ना था। यहाँ टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, बट लगेगा कि टाइम नहीं दिया है, राइट? सो आंसर इज 8 कूलम। ओके, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जी? How much is transferred to the heater each second? अच्छा, अब सिंपल सी बात है, बी पार्ट। बी पार्ट में मैंने आप सब लोग को फॉर्मूला पढ़ाया, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, राइट? पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? Yes sir. तो यहाँ Yes. पर अगर हमें एनर्जी निकालनी है, मींस वर्क डन, याद रखिएगा वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ओके, ओह सॉरी, मैं क्या लिख रहा था? वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या निकालना है? वर्क डन। सो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज, राइट? तो अब देखिए यहाँ पर मैं ये लिख दिया हूं। अच्छा, जो भी फॉर्मूला मैंने दिया है Q इज इक्वल्स टू आई टी या I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, या फिर ये वाला जो फॉर्मूला है सब नोट करके रखिएगा, याद करके रखेंगे सभी लोग। इज दैट क्लियर? क्योंकि Yes. एक फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला भी बनने बाकी हैं, तो याद रखेंगे सब लोग। ओके,
सो यहाँ Yeah. पे हम वोल्टेज हमारे पास कितना है जी, वोल्टेज है 230 और चार्ज जो है वो ये निकल गया 8। कोई मल्टीप्लाई करके मुझे बताएगा कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करने का मैं बेस्ट, हाउ मच अमीशी यू टोल्ड? 1840. करेक्ट, 1840। जिसको दिक्कत है देखिए मैं क्विक कर देता हूं, 8 2 जा 16 तो 1600 हो गया, ये 8 3 जा 24 तो ये 240 हो जाएगा, और 8 से 0 सो 0 सो ये कितना हो गया 1840। तो आंसर इज 1840। यूनिट इज जूल। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अमीशी क्लियर है आपको? Yes, sir. हाँ, तो एग्जाम्स के लिए ध्यान दीजिएगा ये सब प्रॉब्लम्स में। तो अभी तक जी हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दूसरा हमने उससे पहले देखा था वर्क डन का देखा था, वो वोल्टेज देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, चार्जेस देखा था, और एक क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था आप सभी लोगों को कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। वो जनरली कभी कभी क्वेश्चन टीचर पूछ देता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, और आज जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं उन पर ध्यान देंगे आप सभी लोग। Is that clear? Yes, sir. Okay, fine. So हम आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। Give me a moment. Just a moment, please. Okay, next टॉपिक जो है हमारा, एक सेकेंड, अपलोडिंग। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट कोई नहीं, हम इसको देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा पेज बढ़ा लूं। ओके, ओके गाइस, ठीक है। अब देखिए इसमें टॉपिक सब लोग नोट कीजिए। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, फाइन। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, कल ही बताया था कि एक बैटरी ले लेंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर लेकर हम यहां पर इसको बल्ब से जोड़ देंगे। सभी लोगों को मेरा पॉइंटर दिख रहा है, स्मॉल पॉइंटर? और मैं Yes. यहाँ से एक काम करता हूँ, गिव मी सेकेंड। यस, अब यहाँ पर देखिए रेड कलर, येलो 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 येलो, नहीं, ओके गाइस, सो यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक वायर को यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया और बल्ब में लगा दिया, और बल्ब का जो दूसरा कनेक्शन था वो हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, अगर हम कनेक्शन नहीं देंगे, क्लोज्ड लूप इसको बोलते हैं, क्लोज्ड लूप, अगर कहीं से भी वायर को हमने कट कर दिया तो वो क्लोज लूप नहीं होगा और उससे करंट फ्लो नहीं होगा। राइट, सो दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, कल मैंने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस की, राइट, इन दोनों टर्मिनल्स पर, इन दोनों टर्मिनल्स पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। सर एक बार और दे दो। ओके, हम अभी इसको बता देते हैं, जस्ट गिव मी सेकंड, इसको बताने के बाद मैं बता देता हूं। देखिए इसमें लिखा है सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर टू गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब ये है, कल मैंने आप लोग को बताया था इसमें, जस्ट अ सेकंड, कि यहां पर कुछ चार्जेस रहेंगे, यहां पर क्या रहेगा, कुछ चार्जेस, और यहां पर कुछ चार्जेस, राइट। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहां पे मेरे पास कुछ 50 कूलम का चार्ज है
और यहां पर मेरे पास 30 कूलम का चार्ज है, राइट। तो क्या होगा, जब ये चार्जेस डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक इसमें से केमिकल रिएक्शन होता रहेगा। देखिए यहां लिखा है कि ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड द सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द टर्मिनल्स। मतलब क्या कि मैं दूसरे लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जब तक डिफरेंस रहेगा वहां पे तब तक अंदर में केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, राइट। और तब तक केमिकल रिएक्शन होता रहेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होते रहेंगे। जब तक केमिकल रिएक्शन होता रहेगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होते रहेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होते रहेंगे करंट फ्लो करता रहेगा। अब एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो यहां एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, Clockwise. clockwise. The current will move in the clockwise. Amishi, is that clear? Yes, sir. Okay. नीतीश आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके फाइन। आदित्य, आदित्य आपको क्लियर है? आदित्य आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके परफेक्ट। ओके तो देखिए यहां पर जो है हमने ये देखा भी कि पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण जो है क्या होता है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण केमिकल रिएक्शन होता है। देयर विल बी द केमिकल रिएक्शन एंड ड्यू टू दैट केमिकल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो and if the direction is anti-clock so the current will pass clockwise. ओके अमीशी आपसे एक सवाल है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सपोज इट मान लिया कि एनी हाउ क्लॉकवाइज मूव करने लगा, राइट, तो करंट Yes, किस sir. डायरेक्शन में मूव करेगा फिर? Anti-clockwise. यस एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अभी तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देता है। किसी ने ये सवाल नहीं किया अभी तक मुझसे, क्यों जी सोनल? सोनल Yes, sir. ये सवाल क्यों नहीं किया कि ऐसा क्या होता है बैटरी में केमिकल रिएक्शन में कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर जाता है? उस पर ध्यान नहीं दीजिए। तो क्या सुन क्या रहे थे फिर? ओके आप सभी लोगों को पता है कि जो बैटरी होती है ये तो सिंपल सा सेल बैटरी है। इसके अंदर जस्ट गिव मी सेकंड, पेन मेरा, हाँ गिव मी मोमेंट। जो हमारा ये बैटरी होता है, राइट, तो अंदर में क्या होती है, ये जो ये देख रहे हो आप, ये हल्का सा निकला हुआ रहता है, राइट, इसको कहते हैं कैथोड रॉड। क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। और इधर में एक लेयर अंदर में बनी होती है, एक लेयर ऐसे आउटर लेयर, उसमें कुछ ड्राई सेल पाउडर्स वगैरह भरे रहते हैं, राइट, पाउडर वगैरह भरा रहता है। और जो लास्ट की जो निगेटिविटी रहती है आउटर में उसको कहते हैं हम एनोड पार्ट। क्या कहते हैं? एनोड। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने वायर्स को जोड़ा, जैसे ही कनेक्शन हुआ, जैसे ही ये कनेक्ट आपस में हो गया, क्लोज लूप सर्किट बनाया, उसी तरीके से उसी वक्त एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कैथोड रॉड पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट, जो सॉरी कैथोड रॉड में कैथोड इज व्हाट, कैथोड इज आवर पॉजिटिव वन, कैथोड इज व्हाट, पॉजिटिव वन, एंड एनोड इज व्हाट, नेगेटिव वन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वाले। तो जितने भी कैथोड पे जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो प्रोटॉन्स शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन उस पर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। शिफ्ट किधर हो जाता है, शिफ्ट होना शुरू होता है आपका, जस्ट गिव मी सेकेंड, एनोड पर। मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, just give me a second guys. Just give me a moment, I'm just going to show you.
ओके, हाँ ये मिल गया। मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, वेट कीजिए 1 सेकंड, बस मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ओके, ओके, क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? Yes, sir. अमीशी आपको दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है कि एक इन्होंने ले रखा है हमारा रॉड, 2 रॉड है यहाँ पे, क्या है, 2 रॉड है, राइट। 2 रॉड जो है, एक नेगेटिव वाला याद रखेंगे ऑलवेज। यहाँ पर आप देखिए इस पिक्चर में नेगेटिव वाला एनोड ले रखा है और पॉजिटिव वाला हमारा कैथोड ले रखा है, राइट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक केमिकल फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? केमिकल। जनरली वो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, राइट। उस केमिकल को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, राइट। अब देखिए जैसे ही हमने कनेक्शन दिया, कनेक्शन दिया मींस यहां पर आप ऊपर में देखोगे, यहां पे आपको ये बल्ब टाइप का दिख रहा है, राइट। हमने इसको बल्ब से जोड़ दिया, जैसे ही कनेक्शन दिया तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं, एनोड पूरा इलेक्ट्रॉन होता है और ये वाला जो होता है पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, मतलब प्रोटॉन होता है, राइट। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखिए इसके अंदर से रॉड से फ्लो होने लगा। मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इसके अंदर से इधर चला आता है, मतलब कि पूरा का पूरा इस पर डिपॉजिट हो जाता है प्रोटॉन, राइट। अब प्रोटॉन पूरा डिपॉजिट हो गया तो अब इसको देने के लिए कुछ बचा नहीं। देने के लिए जब कुछ बचेगा नहीं तो फ्लो क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा बंद, राइट। फ्लो जब बंद हो जाएगा तो ये काम करना बंद हो जाएगा। इज इट क्लियर विद यू? Yes, sir. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये मैं आई थिंक इसमें कुछ वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो है जिंक रॉड ले रखा है, H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, राइट। सो these are the basic things. Is that clear with you? Yes, sir. Okay, so let's move. Just give me a second. हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे, या ओके, ठीक है। तो ये क्लियर है आप लोग सभी लोगों को? चले आगे। Yes, sir. ओके फाइन। तो अच्छा, तो इसमें आप लोग नोट कर लीजिए, simplest way to maintain potential difference between two ends of the current, so get a continuous flow of current, is to connect it the conductor with the terminal of a cell battery, right? नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट कर लिया हो तो मुझे बताइए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ऑल ऑफ यू नोटेड? No, sir. एक Yes, sir. ओके फाइन। Just give me a second, guys. Okay. Moving the page. What happened? Give me a moment. मुझे इसको ठीक है। Give me a second, guys. कुछ एरर हो गया। ओके, जिप फाइल के कारण दिक्कत आई थी।
therefore, give me a second. I'm just going to show you. Uploading. Okay, guys. आप लोग देख सकते हैं इस इमेज को? सभी लोग देखो, इमेज दिख रहा है ये वाला? Yes, sir. ओके अब आप इसमें आप देखोगे तो इसमें जो है, देखो यहां पर वोल्टेज सोर्स लिखा है. वोल्टेज सोर्स का मतलब हो गया यहाँ पे बैटरी. व्हाट वी विल कंसीडर? बैटरी. याद रखिएगा वो एक वोल्टेज सोर्स होना. अच्छा, बैटरी क्या देता है? बैटरी देता है वोल्टेज. ठीक है, करंट नहीं देता. बैटरी क्या देता है? वोल्टेज. ठीक है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स हो गया. इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो हमने वायर से कनेक्ट कर दिया. राइट. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाया है कि ये देखिए, ये आप देख रहे हो छोटे 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 छोटे, ये क्या है? छोटे 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 Electrons. ये हैं इलेक्ट्रॉन्स. राइट. अब ऊपर में जो इन्होंने दिखा दिया है, इधर भी, दिस इज द रॉन्ग पार्ट दे हैव शोन हियर. ओके, सो बेसिकली जो निगेटिव, ऑलवेज याद रखिएगा, जिधर निगेटिव होगा टर्मिनल बैटरी का, उधर से ही इलेक्ट्रॉन्स. सो आई विल राइट डाउन हियर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दिस. दे हैव रिटन रॉन्ग हियर. It should, oh, just give me a second. I will write it down from here itself. Give me a second. They have written it wrong here. It should be direction of flow of electrons. They have written wrong. Okay. याद रखेंगे जो ये नेगेटिव टर्मिनल जिधर होता है, उधर से ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे. मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. इधर से क्या पास ऑन होगा? इलेक्ट्रॉन. ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं. फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, टू पॉजिटिव टर्मिनल. ये किसका डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑलवेज याद रखिएगा, जिधर भी निगेटिव टर्मिनल जुड़ा दिखे, उधर से ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. ये बात अपने मन में बिठा लीजिए. डायरेक्शन कुछ भी हो, ये सर्किट ऐसा बना है तभी तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है. राइट. अगर हम इस सर्किट को क्लॉकवाइज बना देते, मैं अभी नेक्स्ट में बनाऊंगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है. राइट. एंड फ्लो डायरेक्शन मतलब फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट याद रखेंगे सभी लोग. इसका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. सभी लोग याद रखेंगे. इज दिस क्लियर अमीशी? Yes, sir. यस, फाइन. आप लोग को क्लियर है नीतीश? Yes, sir. ओके. तो इसमें क्या होता है, ऑलवेज याद रखेंगे कि जिधर नेगेटिव टर्मिनल दिखेगा, उधर से ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा. तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा फ्लो कर रहा है इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज. दैट इज द रीजन द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मतलब यहां से ऐसे क्लॉकवाइज ये जा रहा है. इज दैट क्लियर गाइज? यस सर. तो आप लोग स्टेटमेंट लिखिए. मैं स्टेटमेंट अपलोड ही कर देता हूं, लिखेंगे आप, सो इट विल बी बेटर. जस्ट गिव मी सेकंड. मैंने ये एक्सप्लेन किया है पार्ट, और आप सभी लोग यहां पर ये स्टेटमेंट जो है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द स्टेटमेंट टेलिंग यू. ये नोट करेंगे. The conventional direction of electric current from positive terminal to the cell to the negative terminal through the outer circuit. Okay,
सो और यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए नीचे वाला स्टेटमेंट जो मैंने बोला है। नोटेड गाइस? बस एक सेंस। नीचे वाला, नीचे रेड वाला। अमिशी नोटेड? Yes, sir. ओके, जिन्होंने नीचे नोट कर लिया है ऊपर का पॉइंट नोट कीजिए। नीचे में मैंने ये बताया है कि करंट जो है ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। तो मैंने इन दोनों का कंक्लूजन निकाल के ये लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमारा करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। डू इट फास्ट गाइस। जब नोट हो जाए तो मुझे बताएंगे आप सब लोग। हो गया। हो गया? ठीक है। अच्छा, सभी लोग सिंबल्स मालूम है या नहीं मालूम है? इलेक्ट्रिक सिंबल्स। यस सर। Amishi, do you know electric symbols? Sir, few of them. Okay, no problem. I'm just going to tell you. Give me a moment. Okay. This part, this part, this part. Yeah, this part is okay. Give me a second. Okay, I'm uploading. ये देखिए मैंने यहाँ अपलोड किया है। ओके, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्लियर है? नहीं है? अमिशी, आपको क्लियर है ये इमेज? हाँ जी सर। ओके, तो याद रखिए कि सिंगल वाला, जैसे मैं इसको बना भी देता हूं, ध्यान देंगे आप। अगर कोई ऐसे रहेगा तो इसको हम बोलते हैं सेल। अगर इसको वो ऐसे है, कल मैंने बताया था छोटा बड़ा 2 3, तो ये एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, मतलब बैटरी के कॉम्बिनेशन हो गए जी। राइट, यहाँ पे फिर ये हमारा, इसको बोलते हैं स्विच, राइट, क्लोज्ड। इसको बोलते हैं स्विच ओपन। कोई वायर, अगर 2 वायर को जोड़ते हैं तो उसको हम ऐसे ये पॉइंट देके जंक्शन बोलते हैं, इसको बेसिकली ज्वाइंट बोल सकते हैं। अगर जोड़ना नहीं है वायर को
तो ये सिंबल यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, वायर जुड़ा नहीं, लेकिन बहुत सारे वायर एक साथ है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चले गए। दूसरा बल्ब का सिंबल ये हो जाता है, ये इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस में ही एक ऐसे होता है, अगर आप देखोगे ये जो सिंबल इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, ये रेसिस्टेंस और इसके ऊपर ऐसे, इसका मतलब हो गया वेरिएबल रेसिस्टेंस, राइट। और ये इस तरीके से सिंबल ए रिप्रेजेंट कर दिया तो एमीटर, और ये रिप्रेजेंट कर दिया तो वोल्ट मीटर वी, राइट गाइज। कोई प्रॉब्लम इसमें सिंबल्स में, कोई प्रॉब्लम सिंबल्स में? नो सर। ओके, मैं पेज मूव करूं? अमीशी पेज मूव Yes, करें, sir. नीतीश पेज मूव करें, नीतीश पेज मूव करें। नीतीश पेज मूव करें हम लोग। Yes, sir. ओके फाइन, ओके ठीक है। ओके, तो ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ये कंप्लीट कर लिया, ओके फाइन ठीक है। हाँ यस, इलेक्ट्रिक सर्किट मैं आपको वापस से कल तो आप लोगों को बताया ही था, बट मैं फिर से आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा कोई भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए बोलता है या क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, आप सिंपली Yes, ये sir. वाला सर्किट ड्रॉ करोगे, जस्ट सिंपल दिस। Okay, sir. कैन यू सी द सर्किट? सर्किट में क्या Yes, होता sir. है, एक बल्ब लगा देंगे, एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, एमीटर देखिए यहाँ पे जो है वो एमीटर हमारा कहाँ जा रहा है, ये एमीटर देखिए सीरीज में है, राइट। वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में है, करेक्ट। यहाँ पर Yes. एक सेल हो गया, यहाँ पे स्विच हो गया। सर बल्ब कहाँ है? बल्ब इन्होंने नहीं लगाया, मैं जोड़ देता हूँ बल्ब को, नो प्रॉब्लम, बल्ब तो मैं लगा सकता हूँ। वोल्टर भी ढूंढना पड़ेगा। क्या? नहीं कुछ सर। ये लीजिए बल्ब में ऐसे यहाँ बल्ब लगा दिया, कोई बात नहीं है। इज दैट क्लियर विद यू गाइज? तो ये है Yes, हमारा sir. सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट। कोई भी गलती नहीं करेगा यहाँ रिप्रेजेंटेशन में। पॉजिटिव वाला लंबा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है। बहुत से लोग इक्वल बना देते हैं, तो ध्यान दीजिए कभी भी इक्वल मत बनाएंगे, एक बड़ा एक छोटा, बैटरी को रिप्रेजेंट, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूं। और जो बड़ा है वो पॉजिटिव कहलाता है, जो छोटा है वो नेगेटिव कहलाता है। इज इट क्लियर? कुछ लोग मिस्टेक करते हैं तो वो मिस्टेक मैंने यहाँ बता दी है, तो आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। इज इट क्लियर विद यू? यस Yes, सर। sir. ओके, कल जो है हम लोग करेंगे सेम फिजिक्स क्लास, और कल जो है हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ, ठीक है। तो आप लोग काम करेंगे, आप लोग ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस, कल हमें ये करना है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा पढ़कर आइएगा। इज इट क्लियर? यस ओके गाइस, तो ठीक है। मुझे एक चीज जाननी थी कि किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताए अभी। सोनल, आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी? सर पोटेंशियल डिफरेंस एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार बताइए सर। इलेक्ट्रिक नहीं, अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं कल बताऊंगा, अभी टाइम हो रहा है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मुझे बताना है, आप मुझे कल एक बार रिमाइंड करा दीजिएंगे तो मैं वो बता दूंगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। और कुछ में प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। ओके ठीक है। नीतीश आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ चीज जो समझ नहीं आई हो? No, sir. ओके फाइन ठीक है। आदित्य, Sir. आपको कुछ समझने में परेशानी, कोई प्रॉब्लम? No, sir. सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. ओके, क्योंकि हम टेस्ट भी लेंगे इसलिए हम पूछ रहे हैं। ओके फाइन। अमीशी, व्हाट अबाउट यू? Sir, clear है. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपका फ्राइडे को टेस्ट है, राइट? तो आप थोड़ा Yes, sir. सा जो है आप एक काम करोगे, आप व्हाट इज रेसिस्टेंस, व्हाट इज ओम्स लॉ,
और जो मैंने करंट आज बताया है वो और वर्क डन वाला जो फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, राइट? इस पर थोड़ा Yes, सा sir. वर्कआउट करना। और एक क्वेश्चन आता है सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेसिस्टेंस, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं उसको, ठीक है? तो और नहीं Yes, हुआ sir. तो मैं आपको कल मॉर्निंग में कॉल कर लूंगा, ठीक है? तो क्योंकि आपका एग्जाम है तो Yes, sir. थोड़ा सा ये सब आप पढ़ लेना पहले से उसमें से, ठीक है? और थोड़ा सा Okay, कोशिश sir. करो न्यूमेरिकल एंड थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ के ही आप रखना, ठीक है? तो जिससे क्लियर हो जाए। Yes, sir. आपको कुछ प्रॉब्लम आती हो समझने में या कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पे तो आप मुझे बताइए। Okay. हाँ, नहीं. ऐसा कुछ नहीं है? No, sir. ओके फाइन, No, मतलब sir. जो मैं बता रहा हूँ, जो चीजें यहाँ चल रही है, दैट इज क्लियर विद यू? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। ओके सो ओके गाइस, ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम पे, ठीक है? Yes. ओके ओके, Good night, sir. या बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you. Stay connected.